Good morning, dear students. We are doing chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals, and we have already discussed starting के सारे topics like profit and loss appropriations, capital fixed and fluctuating, plus when adjustment and past adjustment entries. Today we will discuss when separate adjustment entries for each error and omission are passed. Okay, so in this case, in place of single adjustment entry, separate journal entries are passed for each error or omission. In my previous lecture, we have already discussed when we were passing only single adjustment entry for all errors or emissions. But now in this case, we will pass separate entries, separate adjustment entries for each error or omission. Okay, so in this situation, analyticable table to find out net effect of all the adjustments is not prepared. Instead, separate journal entries are passed. Okay, in previous topic, we were pass we were doing table adjustments, table showing adjustment, but in this topic, it's not need to prepare table showing adjustment. Okay, in this case, only we will pass journal entries for each error or omission by debiting or crediting profit and loss adjustment account. Okay, profit and loss account. Through this account, we will pass all journal entries. Okay, profit and loss adjustment account. After passing all adjustment entries, profit and loss adjustment account is closed by debiting or crediting the partner's capital or current account. लास्ट में इसको हम क्लोज भी करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स के साथ डेबिट या क्रेडिट उनके कैपिटल या करंट अकाउंट के साथ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इलस्ट्रेशन नंबर 68, पेज नंबर 2.83, 2.83, illustration number 68 indicated. Okay, the capital accounts of Amar and Harsh stood at rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively after the necessary adjustments in respect of drawings and net profit for the year ended 31st March 2017. So students, this capital is again giving closing capital. Okay? It was subsequently ascertained that interest on capital at the rate 12% per annum was not taken into account while arriving the divisible profits for the year. So in this question, interest on capital omitted, right? बट यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल्स जो है वो गिवन है आपके क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट रेट 12% गिवन है, बट इंटरेस्ट ऑन रेट जो है वो ओमिटेड है, भूल गए हैं वो. सो ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, Amar had withdrawn rupees 20,000 and Harsh drawings were 10,000. Drawings are also given. These drawings we will use to calculate opening capital. Okay, ओपनिंग कैपिटल यहाँ आपको कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम इन ड्रॉइंग्स को यूज करेंगे. सो द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 1,50,000. दिस प्रॉफिट विल ऑल्सो वी विल यूज टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, द पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. रेशियो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3:2, एंड you are required to pass the necessary journal entries to rectify the error in accounting. In this question, only a single error is given in this question. Interest on capital is omitted. Okay, let's start. First of all, we have to calculate opening capital. So working note, to calculate opening capital. Closing capital, this is the given. Partner's name is Amar and Harsh. Amar's capital is 2 lakh and Harsh capital is 3 lakh. 2 lakh, 3 lakh. Okay. Now we will add back
drawings which are already deducted from the capital, जो पहले से डिडक्ट कर दी गई हैं, अब हम उसको वापस ऐड कर रहे हैं. ड्रॉइंग्स 20,000 of Ram and 10,000 of Harsh. 2,20,000, 3,10,000. Now after then we will deduct profit which is already added. Profit is given 1,50,000. Now this 1,50,000 divide in 3:2, means 3/5 and 2/5. 3/5 part of Amar is 90,000 and 2/5 of 1,50,000, that is a 60,000. Deduct, after deduction will be 1,30,000 and 2,50,000. Now you can calculate interest on capital. Interest is also given at the rate 12% per annum. यहाँ पर आप 12% per annum के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 1,30,000, 12% on of 1,30,000 and 12% of 2,50,000. It will be 15,600, or secondly it will be 30,000, right? Now we will make the journal format. Students, in this question, partners already distributed their the profit 1,50,000 in their profit sharing ratio. Already उनमें distributed है ये वाला profit 1,50,000, because अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से एप्रोप्रिएट नहीं किया, सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉफिट वी विल कैंसिल नाउ. अब हम उसको क्या करेंगे, जो उनको आपने प्रॉफिट दिया है उसको हम कैंसिल करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके, सो फर्स्ट एंट्री इज April 1st, date column, particulars, ledger folio, debit and credit. Okay, first entry, first of all we will cancel this profit जो कि which is already distributed to the partners. तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बिकॉज आपने जब उनको प्रॉफिट दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इस साइड दिया था ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल. एंट्री थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल टू हर्ष कैपिटल. बट नाउ वी विल, जो आपने क्रेडिट किया था अमर और हर्ष को, अब उनकी कैपिटल को आप डेबिट कर दो, रिवर्स एंट्री कर दो. तो अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, instead of profit and loss appropriation we will use profit and loss adjustment account. Okay, ठीक है, ये प्रॉफिट जो था वो रॉन्ग है, सो दैट्स व्हाई नरेशन विल बी इनकरेक्ट. प्रॉफिट कैंसल्ड, बीइंग इनकरेक्ट, प्रॉफिट cancelled, right? Amount 1,50,000 total. कौन सी रेशो में, 3:2 में ऑलरेडी आपने इनको दे रखा है, सो 90,000, 60,000. Now the profit is cancelled. Okay, अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि उस टाइम पे प्रोवाइड अलाउ नहीं किया था पार्टनर्स को, नाउ वी विल अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स. ओके, इसके लिए आप 2 एंट्रीज करते हो.
एक एप्रोप्रिएशन में करते थे और एक कैपिटल में, सेम एंट्रीज वी विल पास, बट एप्रोप्रिएशन की जगह एडजस्टमेंट अकाउंट हमने ओपन किया है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके, फर्स्ट एंट्री, interest on capital account debit to Amar's capital to Harsh capital. इंटरेस्ट जो भी हमने कैलकुलेट किया था, सेम अमाउंट 15,600 ऑफ अमर एंड 30,000 ऑफ हर्ष. टोटल इज 45,600. सेम इंटरेस्ट वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस adjustment account debit to interest on capital account. Okay, full amount 45,600. 45,600. Now profit and loss adjustment account credited by 1,50,000 and debited by 45,600. So now the profit will be माइनस कर दो इसको, 1,50,000 minus 45,600. Balance is the profit 1,04,400. This profit now we will distribute to partners. अब ये जो profit है ये partners में distribute हो जाएगा, ठीक है? ये this is the correct profit. Profit and loss last entry. This is the first entry, second entry, third entry, and now the fourth entry. Profit and loss adjustment account debit to Amar's capital account to Harsh's capital account. Okay, abhi 1,04,400. Now distribute this amount in their profit sharing ratio. Amount is 62,640 and second person's amount is 41,760. Question done, right? एक ही क्वेश्चन है आपकी बुक में. And this topic also done. ठीक है. Next topic, guarantee of profit to a partner. Guarantee of profit to a partner. Next topic. So students, sometime a partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of the profits of the firm. Okay, maybe case profit हो या loss हो, means any one of partner भी इसमें उनको दे सकता है guarantee, और by all other partners in a particular ratio also उसको guarantee दे सकते हैं इस चीज के लिए. So when the profits of the firm are not adequate, तो उस केस में excess paid to the guarantee partner should be charged to the partner who has given the guarantee. जो person भी guarantee दे रहा है तो उसी के amount से वो charge किया जाएगा. Okay, so let's start this topic practically. Illustration number 69, page number 2.85. 2.85, illustration number 69.
Yes, I'm reading statement. Aman, Babita and Suresh are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1. We have 3 partners और उनकी रेशियो भी गिवन है हमारे पास 2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profit every year. सुरेश को गारंटी दी है कि उसको 10,000 हर साल मिनिमम दिए ही जाएंगे. ये मिनिमम पॉइंट वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, मीन्स मैक्सिमम नहीं. अगर उसका बाई चांस शेयर जो है वो 10,000 से अगर ज्यादा बन रहा है तो आप उनसे रिटर्न वापस कुछ नहीं लेंगे. बट अगर उनके पास शेयर जो है वो 10,000 से कम है तो आप उनको 10,000 कंप्लीटली 10,000 उसको करके देंगे. ओके, इसका ये मतलब है. एंड एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता. यहाँ जो भी डेफिशिएंसी है वो सिर्फ एक ही पार्टनर यहाँ पर जो है गारंटी ले रहा है वो है बबीता. सो द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years ending 31st March 2020 and 2021 were 40,000 and 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 year. तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास प्रॉफिट्स ही गिवन है, कोई अदर एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन है. वी विल जस्ट मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट्स. हमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. इसमें बनाएंगे साथ साथ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. पहले 2020 का बनाते हैं, फर्स्ट ईयर. First year's profit is by profit and loss account. It is given in your question 40,000. Okay. Now divide 40,000 in their profit sharing ratio. अब इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको. शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट. अमन, बबीता and Suresh. Aman 40,000. Ratio is 2:2:1, 2/5. 40,000 2/5. And Suresh 40,000 1/5. 1/5 of 40,000. Now the calculate 16, 8. ओके, बट सुरेश को आपने बबीता ने गारंटी दी हुई है मिनिमम 10,000 अमाउंट. सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 बाय बबीता. ओके, अब जो भी इसमें कम रहेगा वो कौन पे करेगा उसको? बबीता. ओके, तो बबीता के पास जो शेयर आया है वो है 16,000 और सुरेश के पास जो शेयर है दैट इज 88,000. ठीक है, और गारंटी जो दी गई है उसको वो है 10,000. ठीक है, तो अब इसको 2,000 से जो इसकी डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी बबीता जो है अपने अकाउंट से पूरा करेगी. ठीक है, करते हैं इसको. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल, बबीता's capital and Suresh capital. अमन्स कैपिटल 16,000. अमन तो ना उसने गारंटी दी ना ली तो उसका एज इट इज आप शो करो. बबीता's कैपिटल, बबीता का 16,000 उसका शेयर बन रहा है एंड सुरेश का 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. बट सुरेश जो है उसको गारंटी दी गई है सो दैट्स वाई 2,000 इसमें हम क्या करेंगे ऐड. डेफिशिएंसी कौन पे कर रहा है इसको? मेट बाय बबीता. बबीता से 2,000 आएगा प्लस होके तो इसको मिलेंगे मिनिमम 10,000 और इन बबीता माइनस करेंगे हम 10,000 2,000 ये डेफिशिएंसी जो इसने सुरेश के लिए शेयर दिया है. डेफिशिएंसी इन सुरेश शेयर.
इसका शेयर बनेगा 14,000. ओके, टोटल 40,000. क्लोजिंग. क्लियर? Minimum guarantee amount is Suresh is 10,000. So that's why this share of profit as per the profit sharing ratio works out of to be 8,000 only. यहाँ पर उसका 8,000 शो हो रहा था, and there is shortfall of 2,000 which will be borne by बबीता. वो किसने borne किया? बबीता ने. और बबीता से we will deduct 2,000 and same 2,000 we will add in Suresh capital. Okay? उसका 2,000 यहाँ से माइनस करके इसमें हमने प्लस किया है ताकि इसकी जो गारंटी है वो कंप्लीट की जा सके जितने की इसको गारंटी दी गई है. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. नाउ द प्रॉफिट्स आर 60,000 इन 2021. by profit and loss account 60,000. वर्किंग आउट कैलकुलेट कर लीजिए इनका शेयर 60,000 का इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अमन, बबीता, सुरेश. 2/5 of 60,000. 2/5 of 60,000 and 1/5 of 60,000 तो सुरेश. ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको. 12,000, 24,000, 24,000. So you can see in this question Suresh share is more than the guaranteed amount. जो हमने सुरेश को गारंटी दी थी 10,000 की, उसका जो शेयर आ रहा है वो 12,000 है. दैट इज द मोर देन द गारंटीड अमाउंट. सो हेंस देयर इज नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट. अभी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है. एडजस्टमेंट सिर्फ उसकी कब की थी हमने? डेफिशिएंसी के केस में. अदरवाइज कोई यहाँ एडजस्टमेंट्स नहीं होगी. अब यहाँ पर उसका जो शेयर आ रहा है वो मोर देन 10,000 है, जबकि गारंटी उसको सिर्फ 10,000 की ही दी है. ओके, सो नाउ we will show profit transfer to Aman's capital, Babita's capital and Suresh's capital. 24,000 by 24,000 by 12,000. Total 60,000. Total 60,000. Right? सेम क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हैं. फर्स्ट वन, व्हेन जो गारंटेड अमाउंट है दैट इज द लेस कंपैरेटिव टू गारंटी. जितने की गारंटी दी है उससे वो कम थी तो उसका शेयर. देन कौन बॉर्न कर रहा था? जिस पर्सन ने गारंटी दी प्रीवियस केस में. बट इन दिस केस सुरेश का जो अमाउंट आया है वो ऑलरेडी गारंटेड अमाउंट से ज्यादा है, तो यहाँ अब आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं. देयर इज नो नीड टू एनी एडजस्टमेंट्स in this case. Okay, illustration number 70 you can do by yourself. ये easily हो जाएगा आपका. Still मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. जस्ट लिसन केयरफुली. illustration number 70. A, B, C partners sharing ratio 5:4:1. C is given a guarantee that his share of profits in any given year would be 5,000. ठीक है, C को यहाँ पर गारंटी दी है कि कुछ भी हो जाए केस आपको 5,000 दिए ही जाएंगे. सो डेफिशिएंसी इफ एनी अगर कुछ भी होती है वुड बी बोर्न बाय A एंड B इक्वली. तो यहाँ एक पर्सन नहीं बल्कि दोनों पार्टनर्स जो है इक्वली बोर्न करेंगे. ठीक है, मेट बाय बोथ the remaining partners.
So the profit for the year ended 31st March 2021 amounting to rupees 40,000. यहाँ प्रॉफिट जो गिवन है वो 40,000 है. पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. यहाँ एंट्रीज भी करके दिखानी है आपको. एंट्रीज तो आप यहीं से देख कर सकते हो. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू बबीतास कैपिटल टू सुरेश कैपिटल. ये एंट्री ठीक है. फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू बबीतास कैपिटल टू सुरेश. तो टू एंट्रीज यहाँ आपकी बन रही है हर क्वेश्चन में. तो आप वो एंट्रीज अपने आप कर लेना. नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि यहाँ जो डेफिशिएंसी है वो दो पार्टनर्स दे रहे हैं इक्वली. अगर उसका जो शेयर है वो गारंटी अमाउंट से कम आता है, जितने की डेफिशिएंसी होगी वो डेफिशिएंसी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स में से, और वो दोनों का वो शेयर जो है उनके शेयर में से माइनस करके और थर्ड पर्सन के शेयर में ऐड कर देना, ताकि जो जिसको आपने गारंटी दी है उसका अमाउंट पूरा हो जाए. ओके, यू कैन सी सॉल्यूशन इन योर बुक्स. यहाँ जो है ए और बी दोनों ने मेट किया है 500. okay, now this question you can do by yourself. Illustration number 70. Illustration number 71. P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. ये क्वेश्चन करते हैं 71. So in this question, ratio is given 5:3. On 1st April 2014, they admitted R as a new partner for 1/8 share in profits with a guaranteed profit rupees 75,000. R को गारंटी दी गई है 75,000 की. The new profit sharing ratio between PQ will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. अगर इसको गारंटी अमाउंट से कम आता है अमाउंट उसकी शेयर में, तो डेफिशिएंसी जो है वो बोर्न करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स इन द 3:2. इस रेशियो में वो बियर करेंगे. So the profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 4 lakh. यहाँ जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 4 लाख का है. ओके, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं. वर्किंग नोट इसका बना लो पहले. प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट 4 lakh and ours share 1/8 of 4 lakh 50,000. बट गारंटी उसको कितनी दी गई है 75,000 की. तो डेफिशिएंसी कितनी है ये चेक कर लेते हैं. 25,000. दिस डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स. कौन कौन है वो? पी एंड क्यू. और उसकी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यानी कि पी जो है पी कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स आर. पी कंट्रीब्यूट्स और पी गिव्स 3/5 ऑफ 25,000. 3:2 में इन्होंने इसको बोन करना है, बियर करना है. तो 3:2 मीन्स 3/5 पी कंट्रीब्यूट करेगा और 2/5 क्यू. क्यू कंट्रीब्यूट्स 2/5 ऑफ 25,000. कैलकुलेट कर लो आप. ये जो अमाउंट है ये इनके खुद की प्रॉफिट्स में से माइनस हो जाएंगे और आर के शेयर में ऐड हो जाएंगे. राइट, इट विल बी 15,000 and 10,000. right? Now make profit and loss appropriation account.
ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल। ओके, तीनों का आप शेयर पहले कैलकुलेट कर लो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका पुराना शेयर तो वही है, बिकॉज 50,000 जो है वो माइनस करने के बाद 4 लाख में से 50,000 इसका शेयर लेस होने के बाद बाकी रेशियो उनकी सेम ही रहेगी। सो अमाउंट विल बी 3,50,000। 3,50,000 को आप डिवाइड कर दोगे यहाँ उनकी ओल्ड रेशियो में, 5:3 है ना, तो 5/8 एंड 3/8। तो इनका जो शेयर बनता है वो क्या है, 2,18,750। ओके, एंड डेफिशिएंसी जो इसको कंट्रीब्यूट करनी है 15,000 इसके लिए, आर के लिए, माइनस डेफिशिएंसी इन आर शेयर 15,000। ये इसमें से आप माइनस कर दो, अमाउंट जो इसका आ जाएगा वो आएगा 2,03,750। एंड सेम क्यू का आपका जो शेयर आ रहा है दैट इज द 1,31,250। और ये जो डेफिशिएंसी है 10,000 की, ये आप लेस करेंगे इसमें से इन आर्स शेयर कैपिटल 10,000, ये माइनस करने के बाद 1,21,250। आर्स कैपिटल जो कि अकॉर्डिंगली जो शेयर आपने किया उसका 50,000 आ रहा है, बट प्लस दोनों इसको दे रहे हैं 15,000 पी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो ऐड करेंगे 15,000 फ्रॉम पी और फ्रॉम क्यू ऐड करेंगे 10,000। टोटल इसका बन गया जो गारंटेड अमाउंट था 75,000। ओके, टोटल इज 4 लाख 4 lakh, right? So now students, you are able to solve question 68 to 73 or 74. Okay, 74. So students, do up to question 74 from the back exercise, okay, in fair notebooks. Thank you students, have a nice day.